हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारी लाइव देखते हैं, पोल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव, लाइक और इतना सारा स्नेह दे रहे हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों का ये स्नेह हमें बहुत 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 ग्रेटफुल फील करवाता है। रियली 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 एंड थैंक यू सो मच। हमारा जो फर्स्ट कैंपेन है उसको आप लोग ने इतना सारा बूस्ट किया। वी आर सो 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 हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। लेट्स कनेक्ट विद आवर गेस्ट। लेट्स कनेक्ट विद आवर गेस्ट टुडे। दोस्तों, आज का जो लाइव है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी आर हैविंग आवर एक्सपर्ट शेयरिंग द अमेजिंग थिंग विद अस, हाउ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ मदरहुड शी इज गोइंग टू शेयर विद अस। और सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा जो कैंपेन था इट्स अबाउट द चिल्ड्रन इमोशनली नेग्लेक्टेड। उसके लिए हमने काफ़ी चीज़ें की एंड यू नो वी गॉट लॉट ऑफ रिस्पॉन्स एंड हम लोग हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं। 1 सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद द गेस्ट। देर आर फ्यू टिप्स यू कैन रियली इमोशनली कनेक्ट विद योर किड्स। ऐसे तो बहुत सारे हैं और हमने बहुत सारी डिटेल में डिस्कस भी किया है और हम एज अ मैसेज पोस्ट सेंड भी कर रहे हैं, अपलोड भी कर रहे हैं हमारे स्टोरीज में। बट एक शॉर्ट टिप आपको बता देती हूँ, 2-3। इफ़ यू वांट टू गेट रियली कनेक्टेड डीप with your kids, play a structured and unstructured games with kids. Like structured games, like you can play sports, you can play any physical activity, and unstructured game in the sense you can play with them, like playing such a game where you are making them leader and making them take decisions, and they will guide you and you will follow their decisions. Such games. So such game helps kid to take their own decisions and get connected to you deeply also. And secondly, what we can do is we can get connected with the music. Some kind of music, some traditional music, or you can have any kind of rock or any kind of music that connects both of you. And the most important, mantras. If you and your child are doing mantras together, I will tell you, I can vouch on this because I and my kid daily we do a mantra, that is Om. If we do, it's not about the religion, it's not about anything related to religion. You're of any religion, it doesn't matter. You can do a mantra chanting, that is Om, together with your kid, and you will be deeply connected with your kid. Really try this, and these are the small but very effective tips. You can really try it, and do let us know if you want to know more details about it. We are ready to help you. You can text us, you can message us, we will help you with that. Let's connect with our guest today. Our guest today is going to share such a wonderful journey, her journey of motherhood. Everybody is so excited to know more about that because motherhood journey is always felt like बहुत ही स्ट्रगल है, बहुत ही मदरहुड ऐसा होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ये होता है, बट ऐसा नहीं है. Some mothers really enjoy their motherhood and they beautifully make their motherhood a very beautiful livelihood. They really indulge herself into that motherhood so beautiful and so well that whole journey itself becomes so beautiful. So let's connect with our guest today. I hope our guest is on time. Let's see. Thanks Dhruvi, thanks for encouraging dear, thank you so much. Thank you Anju ji connect होने के लिए, thank you Saloni. I'm getting a call, just 1 second. So let's see. We'll wait for some more time. If you guys have any questions to ask, you can definitely ask with us. You can ask us any question during live. You can share anything during live. We are ready to help you.
एंड ओके, जब तक हम हमारे गेस्ट से कनेक्ट नहीं होते तब तक हम वी कैन डिस्कस अबाउट द अनदर कैंपेन वी आर soon very soon going to the project we are working on, and very soon we are going to have a live on that. That session is about waste, dry and wet waste, and we will talk more about it and how we can help the environment and how we can help the country and the society to have a great and amazing system of wet and dry waste. It is a very easy technique because when I started to get into it and to know about it, to read about more about it, तब मुझे पता चला कि इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो हमें करनी है सिस्टम को करेक्ट करने के लिए. देर आर फ्यू स्मॉल स्टेप्स वी कैन डू एंड इट कैन क्रिएट अ मैजिक इन द सिस्टम. सो वी विल डिस्कस दैट इन आवर अपकमिंग लाइव. आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. इट्स ऑल अबाउट मदर एंड किड्स कनेक्शन. You know, how a mother enjoys her motherhood and how ups and downs she went through, but then too she felt that all the journey, throughout the journey, it was a beautiful journey. So let's have our guest actually. Where is she? There is I think some issue maybe connecting her. Let's wait for a few more seconds. दोस्तों, हमने कभी ऐसे ध्यान दिया है कि हमारे मॉम ने बचपन से लेके आज तक हमारे लिए जो भी रेसिपीज़ बनाई है, जो भी खाना बनाया है, क्या हम उसे पे बैक कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं. एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि हमारी मॉम हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाती थी, इतना हमारे लिए ध्यान रखती थी कि हमें जो पसंद है वो हमेशा बनाती थी. So there was so much of efforts in the kitchen she used to take. So we are so blessed and we are so always grateful for mothers, and we can never repay back whatever she has done for us. So similarly, you know, हम हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. लाइक मदर्स ने आज तक जो भी हमारे लिए किया है, that is all her unconditional love, and we can never pay back. So only we can do is we can always be grateful for her, for having such a mother with us, and really grateful that she is always there for us. So this is what we can do. Once again I'm connecting with, once again. So we can be grateful for that. Manan, can I add uncle for the live, because I'm not able to connect with your ID. If it's all right, you can connect the join button. So guys, within few minutes our guest will be here and she will be sharing her beautiful journey with us. या सो सिमिलरली, जैसे बचपन से उन्होंने हमें इतना अच्छा खाना दिया, बना के दिया, खिलाया और इतने प्यार से खिलाया भी, उसी तरह से ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने हमारे लिए की है जिनके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे. एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर आवर मदर्स. तो आज ना दोस्तों, एक छोटा सा आप ये वीडियो अब देख रहे हो या बाद में देख रहे हो या कभी भी आपको ये वीडियो दिखता है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब अपनी मदर को उस दिन जरूर 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 बहुत स्पेशल फील कराए. Send her an amazing text, whatever you feel in your heart, send that, or amazing photo of her with some music or whatever, or do something crazy, do something special for her, make her feel special. That's all. Make her feel special because they are awesome. They are really awesome. Mothers are really awesome. So let's see, guys. It's pretty late now. We are unable to get connected with our guest. Let's see.
if we are facing problem with connecting in this video, we will be doing this live on our Instagram. So let's see for a few more seconds. Be connecting with her very soon, very soon. There's always something or the other, but it's okay. It's technology, right? Hmm. Now I can add you, Manan. Now the option is there. Manan, try from yourself because I'm adding you. Now I got the option to add you. Yeah, we are connecting. Yes, finally. हाय Hi, our expert is here. हाय 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 अरे एक सेकेंड है सेटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ थैंक यू पिक्चर आ रहा है प्रॉपर आपके हस्बैंड का वो बंद करने बोलिए ना, मनन. एक सेकेंड मोबाइल बंद करने बोलिए ना. हाँ हाँ Echo हाँ हुआ हुआ थोड़ा. हाँ एक सेकेंड आज आपका इतने क्यूरियोसिटी से इंतजार था, पता है. चलो मैं अरे आपका थैंक यू the beautiful mom is here and her beautiful journey she will be sharing with us. And दोस्तों आप सब तो जानते ही हैं हमारे एक्सपर्ट मनन को, but let me tell you something about her. She is a trainer, Manan. She is a trainer of health, fitness, and mindset. She has trained so many people around, and she is a fabulous trainer. And she does her work so awesomely that जो भी train होता है ना वो trained ही हो जाता है अच्छी तरह से. So it's awesome. And she is also a very amazing person. Such a kind-hearted person. And she is also working with Master Key Solutions, and she is doing so much of workshops and trainings and everything. एंड बीच में वो खुद भी बताएंगे कि बीच में भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो डिटेल में बताएंगे आज. और सबसे इम्पोर्टेंट, शी इज एन अमेजिंग मदर एंड एन अमेजिंग वाइफ. एक्चुअली शी इज एन अमेजिंग पर्सन. सो मनन,
much for joining us. Thank you so much. थैंक यू शीतल, इतना अच्छा इंट्रो मिला मुझे आपकी तरफ से। और पहले तो सॉरी कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो नहीं रहे हम लोग अब तक तो, बट नहीं नहीं, see, you सीख don't रहे need, प्रोसेस में है। नहीं नहीं, you don't need to be sorry because टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में ही नहीं है, तो it's okay. आप our audience is so वो लोग कभी ऐसे impatience नहीं होते, वो लोग एकदम patiently सुनते हैं हमें। एक एक घंटे का हमारा लाइव होता है, वो लोग हमेशा बने रहते हैं। So we are बने रहते। have such a audience and blessed to have everyone around. आप कंटेंट ही इतना अच्छा लेके आते हो शीतल, तो डेफिनेटली लोग तो अरे बने रहेंगे, सुनेंगे हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज मैं कोशिश करूंगी शीतल, ओके, आज मैं कोशिश करूंगी कि अपनी जर्नी आपके साथ में शेयर करूं, ताकि कुछ अच्छा लोगों को पता चले कि क्या है लाइफ, क्या होती है, किस तरह से चीज आती है। अगर अच्छा कुछ मिलता है, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ सबसे, आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, हमारी ऑडियंस से बहुत कुछ सीखती हूँ। डोंट टेल दैट, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं, ये सीखने की प्रोसेस मुझे लगता है कि लाइफ टाइम चलती रहती है। Yes, yes, absolutely. And I'm so excited to learn. मतलब मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि आज कुछ नया हमें सीखने मिलेगा एज ए मदरहुड, वो हमें काम आएगा। बिकॉज इवन आई एम अ मदर, और आपकी जर्नी से कुछ ना कुछ मुझे सीखने तो जरूर मिलेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। थैंक यू। बट कैन यू एडजस्ट योर कैमरा थोड़ा सा? योर फेस इज नॉट दैट विजिबल। हाँ, थोड़ा सा नीचे ही करेंगे, ऊपर 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 ऊपर। योर फॉरहेड इज ओके, थोड़ा सा ठीक है, और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। ओके। हाँ चलेगा, ठीक, डन। चलो, तो दोस्तों हमारी गेस्ट आ चुकी हैं, हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉम आ चुकी हैं, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद हर ब्यूटीफुल जर्नी। आप लोग भी हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप लोग भी हमारे गेस्ट को कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चंस या एनीथिंग, यू कैन आस्क अस ऑन लाइव, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, मनन। once again, thanks Manan for joining us, giving your valuable time to us. So Manan, my question for you is, हम सब बोलते हैं, मतलब जनरली कोई भी बोलता है कि मदरहुड इज अ स्ट्रगल, मदरहुड इज टफ जर्नी, ये है वो है। आपको ये जर्नी अमेजिंग ब्यूटीफुल कैसे लगी, और आपने कैसे ये ब्यूटीफुल जर्नी नो जर्नी स्टार्ट होती है शीतल, थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरी शादी बहुत जल्दी मीन्स आज के हिसाब से मेरी शादी हुई तब मेरी एज 21 थी। तो उस समय में क्या होता है, उस एज में क्या होता है शीतल, कि हमारा माइंडसेट एक एक्सेप्टिंग ज्यादा होता है, कि हम लोग लोगों से भी सीखते हैं। अगर 27-28 में मैरिज होती है तो हमारा माइंडसेट एक स्टेबल हो जाता है कि हमें ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज अच्छी नहीं लगती। ओके, ये सबसे राइट, ये सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे तरफ से मेरी लाइफ में हुआ है कि मेरी शादी 21 में हुई। एंड जो भी फीलिंग्स थी तभी, उसके साथ में नया लाइफ स्टार्ट किया। पहले भी शुरू में सबके साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस तरह से हमारी लाइफ में भी थे। बट जैसे ही पता चला 22 एज थी मेरी, तो कुछ प्रेगनेंसी का पता चला, तो ऐसे लगा कि अरे बहुत जल्दी हो रहा है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही थी चीज। और जैसे मैंने बोला कि एक्सेप्टिंग नेचर में थी मैं, कि एक्सेप्ट करना है जो भी है, वो अच्छे से पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। तो स्टार्ट किया। पहले तो शुरू शुरू में हम लोगों ने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया कि हमें अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। एक थोड़ा एफर्ट्स भी उसमें हमने कुछ दवाइयां वगैरह इसके साथ में की। लेकिन पता चला, डॉक्टरों ने बोल दिया कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, कि अभी आपको एक्सेप्ट करना है ये चीज। तो बट तब हम दोनों ने मिलके ये सोचा शीतल के अब ये नहीं, बट हम लोग इसे बर्डन के तौर पे नहीं लेंगे कि हो रहा है इसलिए कुछ ना कुछ इसमें निगेटिविटी नहीं डालेंगे। तो तब से हमने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। तो आज तक मुझे लगता है हम लोगों ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। आज मुझे लगता है कि
एक सही समय में जो चीज होनी चाहिए थी वो भगवान की तरफ से एज अ प्रसाद हमें मिल गई। और आजकल बहुत सारे कपल्स का यही होता है कि वो रेडी नहीं होते प्रेगनेंसी के लिए, राइट बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं होते। उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे चल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है और बाद में मेडिकेशन के हिसाब से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं शीतल के। नहीं हो पाते हैं बच्चे, या फिर जो भी प्लानिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं चीजें, तो उसकी वजह से टैबलेट्स की वजह से भी कुछ हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, तो बच्चा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है सारी चीजें होने में, और देरी से होती है। और Right. मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ये सारी चीजें ऑन टाइम हुई ऑटोमेटिकली। मेरे हम दोनों की तरफ से जो एक्सेप्टिंग था उसकी वजह से ये पॉजिटिवली हुआ। और बाद में जैसे पता चला तो हम लोगों ने बहुत सारे जैसे सपने होते हैं हस्बैंड वाइफ के कि ऐसा हो वैसा हो, तो इस तरह से हुई सारी चीजें। और मैं 22 की थी तब मेरा बेटा आया दुनिया में। और एक जो लाइफ होती है शीतल, एकदम 360 डिग्री से चेंज हो गई हमारी कि अरे Exactly. अब क्या अलग से क्या होने वाली है चीजें। तो धीरे 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 सारा कुछ मैनेज होता गया। शुरू शुरू में जैसे मैंने बोला हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ कठिनाइयां आती है शुरू शुरू की लाइफ। फाइनेंशियली सेटल डाउन नहीं होते हम लोग इतनी जल्दी, तो उस तरह से कुछ हुआ। हमारी फैमिली में भी कुछ सारे थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, फिर हमने स्टार्ट किया अच्छे से। बट तब मुझे लगता है कि तब मुझे एक सही समय मिला कि मैं अपने बच्चे के साथ में अच्छा एक बॉन्ड बना पाऊं। क्योंकि Right. जो भी टाइम मिलता है तो उसमें अगर हम उसको अच्छी तरह से पॉजिटिवली यूटिलाइज करें तो उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आते हैं। राइट राइट, नहीं एब्सोल्युटली। एंड मतलब सबसे अच्छी बात यही लगी कि आपने और आपके हस्बैंड ने वो जो फुली एक्सेप्टेंस किया ना, मतलब या सिचुएशन थी, आपने यू गाइस हैव फुली एक्सेप्टेड कि ये सिचुएशन है एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट। वो ही एक विनिंग जर्नी की शुरुआत है एक्चुअली में। बिकॉज जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना, वहीं पे ही फिर जिंदगी स्ट्रगल हो जाती है। जहाँ वही। एक्सेप्टेंस हो जाता है वहीं जिंदगी का पूरा डायरेक्शन ही शिफ्ट हो जाता है। राइट, एब्सोल्युटली। और अगर बाद में हम लोगों ने एक भी निगेटिव थॉट नहीं दिमाग में लेके आए शीतल के क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अगर एक्सेप्ट किया है किसी चीज को तो हम लोग पॉजिटिवली उसको लेते हैं, तभी हम लोग अच्छी तरह से सोच पाते हैं, अच्छी चीजें दिमाग में ले पाते हैं। तो मुझे राइट लगता है कि ये एक सही शुरुआत है, क्योंकि आजकल के कपल्स जो है वो इसी परेशानी में होते हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, हम लोग तो रेडी नहीं है किसी चीज के लिए। बट आने वाला अपना नसीब खुद लेके आता है, जो भी है वो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हमें राइट राइट सिर्फ उसको अच्छी तरह से खींचना होता है, और मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली हम उसके लिए प्रिपेयर हो ही जाते हैं। राइट। you know, you are lucky to have Mitesh and Mitesh is lucky to have both of you, you know। थैंक दोनों यू। दोनों तरफ से एक्चुअली सुपर्ब, इट्स ऑसम, रियली ऑसम। सो या ये जो आपने बात बोली ना एक्सेप्टेंस की, मनन, आई थिंक दिस इज अ मेन फाउंडेशन ऑफ योर ब्यूटीफुल जर्नी। राइट। बिकॉज आप लोग ने फाउंडेशन ही इतना ब्यूटीफुल सेट, मतलब स्ट्रॉन्ग सेट कर दिया कि यस दिस इज द सिचुएशन, वी एक्सेप्टेड इट, बस। फिर उसके ऊपर वो बिल्डिंग अपने आप अच्छी अच्छी बनती गई, क्योंकि मेन फाउंडेशन का स्ट्रक्चर ही इतना स्ट्रॉन्ग और ये था, एक्सेप्टेंस था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब मेरा ये सवाल रहेगा आपको कि जब, तभी तो आप मतलब काफी यंग थे, इट इज 22 इज सच ए यंग एज, यू नो। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस यू नेवर फेल्ट कि अरे यार ये क्या, ये एज में एक्चुअली ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती है शायद एक्सेप्टेंस आने में। एक्चुअली जो हाँ मैं पूछने हाँ जा हाँ रही हाँ। थी, ऐसा क्यों अभी, क्यों ये जिम्मेदारी अभी, क्यों वो जिम्मेदारी अभी, क्यों? शायद एक्सेप्टेंस की वजह से ये सब थोड़े एलिमिनेट हो गए थे, राइट। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप उस वक्त यू वर हाउसवाइफ और यू वर वर्किंग, और कैसा सिनेरियो था, हाउ वाज द सिनेरियो? जैसे मैंने बोला शीतल की 21 की एज में शादी हुई, तो जस्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होके स्टार्ट किया किया था। बट शादी के बाद में मेरी मदर इन लॉ हमारी शादी के पहले के से नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज
बहुत ज्यादा थी। घर में कोई औरत नहीं थी, मेरे ससुर एंड हम दोनों ही थे। और राइट तब जॉब वगैरह करना उस समय पे सही नहीं था मेरे लिए, सही डिसीजन नहीं होता। बट बाद में जैसे जैसे नितेश का एजुकेशन का स्टार्ट हुआ, तो उसके मीन्स मैं 32 की थी, तब मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करती हूँ। तब तक मुझे लगता है शीतल कि हमें हमारा माइंडसेट ही लेके चलता है आगे तक कि क्या करें। बट जैसे राइट मैंने बोला कि शुरू में हाउसवाइफ थी, तब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे आजकल हाउसवाइफ को वो भी एक इश्यू है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो अलग तरह से ग्रो हो रहा है आपके साथ में। किसी की राइट शादी 25-26 में होती है, तो 2-3 साल उनको और मिल जाते हैं अपने करियर राइट का एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए। तो ये था, ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसको हैंडल करना तब थोड़ा मुश्किल जाता है। अगर हम अच्छा ना सोचे, हम जो अभी जिंदगी जी रहे हैं उसके साथ में अगर हम अटैच ना हो, तो मुझे नहीं राइट लगता है कि हम किसी चीज को अच्छे से ले सकते हैं। और मुझे ये लगता है शीतल कि जब हम ये ना सोचे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम सिर्फ ये सोचे कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो एक अलग पर्सनालिटी निखर निखर के आती है हमारी। राइट राइट क्योंकि आपको शायद सब बोलेंगे कि आप घर पे हो, तो फिर हम लोगों का मीन्स एक नजरिया समाज का जो है हाउसवाइफ की तरफ, वो थोड़ा सा चेंज है ही पहले से। राइट एब्सोल्युटली आई एग्री विद या और इससे क्या होता है, हम लोग भी थोड़ा अपने में कमी महसूस करने लगते हैं कि अरे नहीं थी। और अगर थोड़ा भी माइंडसेट हिलता है शीतल, तो सारा का सारा इफेक्ट जाता है हमारे बच्चे पे, राइट हमारे हस्बैंड पे, जो कुछ भी हमारे पास वाले हैं उनके साथ में चीजें खराब होने लगती है। राइट राइट मुझे लगता है कि आप अगर पॉजिटिवली ले रहे हो चीजें, अगर हाँ ठीक है आज की मेरी सिचुएशन ऐसी है, बट मैं अपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखा था मैंने कि हाँ मैं ये चीज कर रही हूँ, अपनी खुशी से कर रही हूँ, मुझे कोई जबरदस्ती इसमें नहीं डाल रहा है। ये जो राइट भगवान की मर्जी है, इसने दिया है अभी, और इसे मुझे एक अच्छी पर्सनालिटी बनाना है। राइट क्योंकि बच्चे आते हैं शीतल, जैसे मैं सोचती हूँ बच्चे आते हैं अपना डेस्टिनी साथ लेके आते हैं, लेकिन राइट उसका पार्ट 5% ही होता है। 95% हमारा जो हम उनमें प्लांट करते हैं, जो सिखाते हैं उनको, जो उनके सामने हम लोग होते हैं, जो उनके आसपास हमारा अस्तित्व होता है, तो उसी से बच्चे पनपते हैं, उसी से वो बनते हैं, आगे चल के बड़े पेड़ बनते हैं। तो मुझे राइट लगता था उस टाइम पे ऐसे पेरेंटिंग के सेशंस वगैरह या इंटरनेट वगैरह नहीं था। तो राइट तब मैं करती थी शीतल, अखबारों में से कुछ आर्टिकल्स आते थे कि बच्चों को कैसे बढ़ाएं, या फिर ओ उनका साइकोलॉजी कैसे सीखे। तो अगर आपका गोल है अच्छी चीजें सीखना, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई वे है सामने तो ही आप करोगे। अभी भी राइट आप गांव में जाके भी देखोगे जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहां पे भी लोगों की थॉट प्रोसेस अच्छी है, वो बच्चों को राइट अच्छा सिखाते हैं। राइट उनको राइट उनको उनको वो open for something new. They are open for accepting new राइट, things, technology. Right. ये हर पेरेंट का पहला धर्म है कि भगवान ने जो दिया है उसको हम अच्छे से उसकी वैल्यू करें। ना कि Right. हम पेरेंट है तो हम उनको बॉसिंग करें, या फिर हाँ. हर चीज उनसे ही एक्सपेक्ट करें। ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत जाती है। तो मैंने कोशिश की ये माइंडसेट को थोड़ा ये करने की, चेंज करने की कि नहीं मैं हूँ। और ये हमें बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है शीतल, क्योंकि जो Right. सामने से सोसाइटी से, हमारे फ्रेंड सर्कल से बहुत सारी चीजें आती है हमारी तरफ। तो हाँ हमें अननोइंग एक है क्योंकि कोई फ्रेंड आपको जानबूझ के नीचा नहीं दिखाएगी बट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन एटीट्यूड कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि यू कैन फील लो समटाइम तो उस दौरान हमें क्या अपने आप को बोलना है जो आपने किया दैट इज कमेंडेबल आपने जो किया वो सच में कमेंडेबल था बिकॉज आपने क्या किया कि अपने आप को बार बार याद दिलाया कि नहीं क्या आई हैव दिलाया। be mom right now and I'm happy to be a mom and a housemaker right now so you accepted that and you worked on that और जैसे राइट अभी राइट आप अपने न्यूज़पेपर से पढ़कर आर्टिकल्स निकाल निकाल के यू वे ट्रेनिंग योरसेल्फ
as a, how you can relate with your kid, how you can connect with your kid. That is awesome. Because वो वो time होता है पे ना शीतल, हम लोग वेज निकाल लेते हैं कि कहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कि क्या करें हम लोग, तो वो निकल। और ऐसा नहीं है शीतल, वर्किंग पीपल भी जो है, वर्किंग लेडी जो है, उनको भी ये होता ही है कि हाउस वाइफ है तो वो शायद उनका एटीट्यूड थोड़ा थोड़ा अलग होगा, बातचीत करने का ढंग अलग होगा, पर वो भी कहीं ना कहीं ये मिस करते हैं कि बच्चों के साथ हम लोग नहीं है। राइट बट राइट उनका एक अलग कल्चर बन जाता है, उनका एक अलग दिन का दिनचर्या बन जाती है कि उसमें वो कुछ चीजें उनसे हो जाती है जो कि हमें हर्ट कर जाती है अगर हम हाउसवाइफ्स है तो ऐसे समय में थोड़ा स्ट्रांगली खुद पे विश्वास करके, और मुझे लगता है कि अपडेट रहे शीतल, आप अपडेट रहते हो, आपको आप बच्चे के साथ में आप खुद को भी संभालते हो। और अगेन मैं बोलूंगी कि ये आपको अपना डाइट ठीक करना है, आपको हेल्थ संभालनी है, और बच्चे के साथ में हम ये कर सकते हैं आसानी से। अगर टाइम मैनेजमेंट का इशू है, अगर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि ये चीजें सच्ची में शीतल ऐसे होते हैं, हर माँ को ये पूछ लो, अरे टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चा इतना ये, हाँ तो अभी बच्चा हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है, या फिर जरूरत नहीं है खुद पे काम करने की, अभी बच्चा है तो सिर्फ बच्चा ही है। ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे शीतल, तो आप खुद को धीरे धीरे वैल्यू करना बंद कर दोगे। आपको सामने से कोई कमेंट कर रहा है कि अरे आप तो थोड़ा ये हो गई हो, मोटी हो गई हो, या फिर पतली हो गई हो, जो भी कुछ है, तो हम लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ, एक्सेप्ट कर लेते इसको। अगर कोई सामने से बोल भी रहा है तो हमें उस पर काम करना है। और सामने से बोलने से ज्यादा, अगर आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, आपको कोई चीज लग रही है, किसी के बोलने या ना बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ता अगर आप या अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई जरूरत है आपको अपने आप पे काम करने की, तो मुझे लगता है कि अपने हेल्थ पे ध्यान रखना, अपने डाइट का ख्याल रखना, ये तो जरूरी चीज है। अब ये सारी चीजें अगर आपका माइंडसेट नहीं होगा शीतल, आप अगर उस तरह से सोचोगे नहीं तो नहीं होगा। राइट तो एब्सोल्युटली सबसे पहले ये, राइट, ये सोचना जरूरी है कि आप क्या, अपने आप के बारे में क्या सोचते हो, आपका दिन का रूटीन आप क्या रखते हो, किस तरह से। और ज्यादा मुश्किल नहीं है शीतल, मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं कोई एकदम नौकर चाकर है सारी चीजों के लिए, घर में ऐसे ही फैमिली से नहीं बिलोंग करती पहले, तो ऐसे नहीं है कि नहीं होती है, चीजें होती है। हम लोगों को सिर्फ ये नजरिया लाना पड़ेगा लाइफ में कि हम लोग कर सकते हैं। आपको कोई चीज पसंद है, आप उस पर काम कर सकते हो। जैसे मुझे शेयर ट्रेडिंग पसंद थी, तो मैं जैसे भी टाइम मिलता था तो मैं शेयर्स के कुछ सेशंस वगैरह होते थे, तो वहां पे जाके मैं देखती थी। एक्टिंग के कुछ वर्कशॉप्स थे, मैं उसमें देखती थी, पार्टिसिपेट नहीं किया था कभी, बट देखती थी मैं। बेस्ट रहता था। राइट, तो वो थोड़ा ये अपने आप को एक एनर्जाइज करने के लिए जरूरी है शीतल, क्योंकि हम लोग अपडेट रहे, जितना अखबार डेली पढ़े, ऐसे नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है खबर ही नहीं, ऐसा भी ना हो। तो ऐसे अगर आप बच्चों को बड़ा कर रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, क्योंकि टाइम है तो आप वो पॉजिटिवली आप यूटिलाइज करो अच्छी चीजों के लिए। तो जब आप बाहर निकलते हो ना शीतल, तो दुनिया वेट कर रही है आपका, ऐसे निकलते हो आप। अगर किसी का ओपिनियन आपके लिए मैटर नहीं करता है, तो बस चीजें वहीं से स्टार्ट होती है, अच्छी अच्छी चीजें स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तभी तभी से। तो मुझे लगता है कि अच्छी तरह खुद को मेंटेन रखना, ग्रो करना बहुत जरूरी एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब आपने मनन ये तो शेयर किया है कि आप क्या करते थे, बल्कि आपने ये भी बताया कि हम क्या कर सकते हैं। दैट इज अमेजिंग मनन। रियली रियली मतलब दोस्तों, जैसे मनन ने गाइड किया कि सिर्फ हम बच्चों पे ही पूरा फोकस, सेंट्रिक फोकस ना दे, खुद के ऊपर भी ध्यान दे ड्यूरिंग व्हेन वी आर हैंडलिंग द किड्स। मतलब हम मदरहुड स्पेस में है और हम बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं, तो सिर्फ भूल ना जाए कि हमें खुद का भी ध्यान रखना है along with the kids। है। बिकॉज अगर हमारा कप फुल होगा तो ही हम दूसरों को भी कुछ दे पाएंगे, अगर हमारा कप एम्प्टी होगा तो हम दूसरों को कुछ नहीं दे पाएंगे।
तो एक्चुअली मतलब ये बहुत सही चीज है, क्योंकि हम खुद ग्रो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों तक भी वो वाइब्स पहुंचती है, और वो भी हमें देख देख के ग्रो होते हैं वैसे पॉजिटिवली। राइट। दैट इज अमेजिंग मनन, दिस इज, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर दीजिए, चाहिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज खुद की ग्रोथ के साथ साथ बच्चों की ग्रोथ के साथ साथ खुद की भी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। खुद को हमें रोकना नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम नहीं होना है, राइट, एब्सोल्युटली गुड। तो इसको मनन ये तो हाईलाइट बहुत कर रही है लाइफ, इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट, राइट। तो नहीं, आप कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रहे हो, आप कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रहे हो, मतलब पहला पॉइंट आपका ये था और अभी वाला पॉइंट ये था, मतलब दीज आर द मेन पॉइंट्स। मतलब पहला आपका पॉइंट ये था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आई एक्सेप्टेड माय मदरहुड, तो यहीं पे आपके आधे स्ट्रगल खत्म हो गए, then your beautiful journey started. And this second point, have a self image, अपनी self image पे भी काम करना है, अपने आप पे भी काम करना है, ताकि किसी के आगे हम लो फील ना करें। being a mother, being a housewife, we should never feel low. So this is an ये amazing, बहुत ज्यादा ये बहुत yeah, ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है शीतल, सॉरी मैं yeah, आपकी बात काट रही हूँ, बट बहुत बार मैंने देखा है कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी थोड़ा वेट गेन हो जाता है ना, तब भी हाउसवाइफ्स ऐसे खुद को समझती है कि बस अभी ये कुछ नहीं होगा इसका, होगा, राइट अभी राइट, अभी अभी हो गया हमारा तो मीन्स अब जैसे हम अब है वैसे ही रहेंगे। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आफ्टर प्रेगनेंसी एंड एक मेजर सर्जरी हुई थी मेरी, मेरा वेट हुआ था 70 kg, ओह, 70+ भी बोल सकते हो, 72 समथिंग कुछ था। तो उसके बाद में जैसे वो क्लिक हुआ, मुझे खुद ही क्लिक हुआ, मेरे हस्बैंड ने तो कभी मुझे ये बताया नहीं कि अरे ये हो रहा है, बट मैंने जब एक बार मेरी तस्वीरें निकाली थी एकदम अच्छे से तैयार होके, और तब उसमें मैंने जो अपने आप को देखा, तो मैंने सोचा कि नहीं ये चीज, क्योंकि जो चीज हमें गलत लगती है शीतल, हम उसी पे अच्छे से काम कर सकते हैं। किसी एब्सोल्युटली कोई एब्सोल्युटली, कोई अगर हमारे बारे में गलत भी बोलता है तो हम लोग सीरियस नहीं होते इतना, हम लोग अपने आप को कम समझने लगते हैं, बट उस राइट, पे काम नहीं करते। काम नहीं करते काम जब, काम जब तक हम तब एक्सरसाइज नहीं कर ले तब तक, एब्सोल्युटली, राइट, राइट राइट। तो मुझे लगता है कि किसी कोई भी यहाँ पे आज आप जिस कंडीशन में हो वो आपकी परमानेंट कंडीशन है ही नहीं। है, जब आप ये सोच लेते हो कि बस मुझे करनी है कुछ चीजें, राइट, और ये कहीं कुछ ऐसे आप ऐसे गोल पकड़ के नहीं चलते हो शीतल कि आगे चल के क्या होगा, किस तरह से हम लोग चलेंगे, किस तरह से लाइफ चलेगी आगे चल के, बट ये प्रोसेस जो है ये आपको इतना आनंद देती है, इतना एक कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, एक जेस्चर देती है आपको, एक अच्छा पर्सन बनने में मदद करती है बहुत ज्यादा। क्योंकि जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं शीतल, तो सारी दुनिया हमें अच्छी लगती है, हम किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। नहीं सकते, सीरियसली सीरियसली। नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मनन ये एक्चुअली ये सब चीजें ना बेस है हर चीज के लिए। राइट। तो ये बेस पे अगर हमने काम कर लिया ना, तो हमारी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो गई, तो बिल्डिंग तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। यस, और एब्सोल्युटली, ये आई, सारा ये सारा प्रोसेस जो है शीतल, हमारा ये हमारे बच्चे हमारे साथ में देखते हैं, हमारे राइट, क्योंकि सारी चीजें हम उनको मुंह से बोल के नहीं सिखा सकते हैं, कुछ चीजें हमारी एक्शन सिखाती है, कुछ चीजें बॉडी लैंग्वेज से बच्चों को पता चल जाता है, तो ये एंड धीरे 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 वैसे वो ज्यादा सीखते हैं, देख के वो ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा सीखते हैं। ज्यादा सीखते हैं, राइट राइट। तो वही तो मैं मनन, हमेशा बोलती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए हाँ बोलिए। मुझे हाँ मुझे वही लगता है शीतल कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उनको बोलते हैं, जो उन्हें सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं, जो हमारी एक्शंस करती है। एब्सोल्युटली, नहीं ये सही बात है, क्योंकि यही हमें हमें जो बच्चों को सिखाना है वो हमें खुद करना है, इट इज दैट सिंपल एज दैट। मतलब जो हमें चाहिए कि वो बच्चे में वो क्वालिटी या वो आदत आए, वो रूटीन आए, तो वो रूटीन पहले हमें करनी है, हमें हम करेंगे हमें तो कंटिन्यू करना है। अच्छे से करेंगे, एब्सोल्युटली। तो मनन, मेरा सवाल आपको ये रहेगा कि अभी जैसे आपने बताया कि यू वर हाउस मेकर एंड यू वेर विद योर किड, एंड हाँ आफ्टर 10 years ago, जब आपका बच्चा बड़ा हुआ, तब देन यू स्टार्टेड टू हैव इंटरेस्ट फॉर योर अदर शेयर्स एंड अदर स्किल्स।
तो और क्या है डिटेल में आप बताना चाहोगे कि फिर बाद में धीरे धीरे आप जैसे कि आपने बताया था एक बार मुझे कि आप रेडियो वॉइस ओवर या रेडियो का ये करते थे, तो थोड़ा डिटेल में बताना चाहोगे इस बारे में? यस शीतल, जब मितेश का 10th का एग्जाम था तो सुबह उसके क्लास ये था, स्कूल था, बाद में वो क्लासेस वगैरह था 10th के उसके। तो तब मुझे ऐसे लगा कि अब आगे चल के 10th के बाद में तो बच्चों को अपनी जरूरत पढ़ाई के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि तब तक तो उसका सारा पढ़ाई का जिम्मा मेरा ही था। तो बाद में मुझे ऐसा लगा कि खालीपन आ जाएगा लाइफ में फिर थोड़ा, कि अरे कुछ, और अब तक जो मैंने सीखा था, जो अब तक मैंने मुझे ये करना है, ये चीजें मुझे सीखनी है, नया कुछ ट्राई करना है, तो तब तक मुझे लगा। तो 10th का उसको जब स्कूल का टाइमिंग था तब मैंने एक शेयर ट्रेडिंग का गोल्ड पे जाके शेयर ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन किया। मैंने शेयर ट्रेडिंग सीखा, और थोड़ा थोड़ा जैसे वो कुछ पढ़ाई कर रहा है 10th का, तो मैं तब तक अपना कुछ कर लेती थी। राइट। बट तब मुझे लगा कि तब फेसबुक नया नया आया था, तो उसमें सारे फ्रेंड्स मिले। तो ऐसे धीरे धीरे करके, और टेक्नोलॉजी सीखना भी जरूरी है शीतल, आज के जमाने में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए। क्योंकि उससे पहले तो मोबाइल भी लेट आए, तो मुझे मैसेज भी टाइप करना नहीं आता था, बोल रही हूँ मैं आपको आज, क्योंकि तब तक नहीं पता था कुछ भी। और आज भी मेरी ऐसी की फ्रेंड्स है शीतल, बहुत सारी फ्रेंड्स है कि वो जो इतना नहीं सीरियसली ले रही है इस चीज को, कि अवेयर रहना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हम लोग इसका ये नहीं करेंगे, बताए बोलेंगे नहीं कि इतना जरूरी है, बट थोड़ा जरूरी तो है कि आप कुछ कर सकते हो अलग से। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी हो नहीं पाता अगर मैं ये सीखती नहीं, या फिर क्योंकि अगर हम नहीं सीखते कुछ चीजें तो हम एक दुनिया से अनजान रह जाते हैं, जो भी राइट। कुछ हो रहा है आगे चल के। तो वो सारा कुछ मैंने किया। अगेन 32 की एज में मैंने रेडियो जॉकी का कोर्स किया। तब या इंटरेस्टिंग यार, एक और तब ना शीतल एक ऐसा लगा कि अरे बाप रे क्या है, क्योंकि 32 की एज में ये सीखना मेरे लिए थोड़ा अलग चीज थी, एक अलग टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। क्योंकि जब रेडियो मिर्ची के ऑफिस में हम लोग गए, रिकॉर्डिंग्स की, तो पता नहीं ऐसे लगा कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड एकदम, एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस वहां पे था, वहां पे आरजेस के साथ में सब, एक इतना अच्छा माहौल बन गया था वहां पे। और जब रिकॉर्डिंग रूम में जाते हैं शीतल, तो ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस लेके जाना पड़ता है, तो माइंड भी ऐसे हो जाता है ना कि बस रुक जाए यहीं पे, बस हम बोले, हमारी आवाज हम जो एको जैसे बोलते हैं वही सुने। मीन्स एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस था वो। तो तब मुझे उस रिकॉर्डिंग रूम में ये चीज एक पता चली कि बस अभी पीछे नहीं जाना, अभी जो भी करेंगे वो आगे चलने के लिए करेंगे। राइट। तो आज भी मैं वॉइस ओवर में भी काम करती हूँ, क्योंकि वाओ। रिकॉर्डिंग्स रेडियो मिर्ची पे मैंने एज अ फ्रीलांसर कुछ उनके जो फ्रीलांसर वर्क होता है उनका कुछ पोएम्स वगैरह रिकॉर्ड करना, ये वो बहुत सारा काम किया रेडियो मिर्ची के साथ में। तो पता नहीं एक अलग सा जुनून स्टार्ट हो गया वहां से। और फिर मितेश की दुनिया भी अलग हो गई, उसको भी उसके फ्रेंड सर्कल, क्योंकि उसके लिए भी कॉलेज लाइफ थोड़ा नया होता है उनके लिए, तो वो सारी चीजें हो गई धीरे धीरे। मैं एक अपनी दुनिया में, बट ऐसा नहीं है शीतल कि हम लोग अगर बाहर निकलते हैं तो पूरा एकदम अपने कमिटमेंट्स, हाँ अपने कमिटमेंट्स को एक साथ में हम लोग रखते हैं। तो मेरा मुझे सबसे यही कहना है कि आप बाहर निकल रहे हो तो मीन्स आप घर का ख्याल नहीं रखोगे, या फिर कोई रिश्तों को आप कुछ क्या हर्ट करोगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर या तो प्रॉपर बैलेंस के साथ में हम। बैलेंस मतलब मैंने देखा है मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, और मतलब whoever are working ना, they are working so beautifully with फैमिली को भी लेके चल रहे हैं अच्छे से, एंड they राइट are यार, making their kids also properly nourished, and they are working also. तो actually women can do anything. सच बताओ तो वुमेन में मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, बट वो कर इच्छा होनी चाहिए, वो एक करने की पूरी तरह से इंटेंशन और एफर्ट्स होने चाहिए।
राइट राइट राइट। अगर इन सारी चीजों से मुझे एक अच्छी सी लाइन याद आ गई शीतल, कि रिश्ते, हम चुप है इसीलिए हमारे रिश्ते बने रहते हैं, और चुप है इसीलिए रिश्ते रिश्ते हैं इसीलिए हम चुप है। ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमारा रिश्ता सही से होना चाहिए तो कई कई जगह पे हमें चुप रहना पड़ता है, राइट और हम राइट चुप रहते हैं क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे बने रहे। तो राइट मुझे मुझे ऐसे लगता है शीतल के अगर हमारी हमारे आसपास के रिश्ते अच्छे से हमारे साथ में चले, पॉजिटिवली चले, और हम उनको उतना इम्पोर्टेंस भी दें, हमारे साथ साथ में उनको भी हम बड़ा बड़ा करें, उनको भी हम थोड़ा स्पेस दें, तो राइट एक तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मल्टीटास्कर हम लोग होते हैं, तो अगर फैमिली को भी साथ में लेके चलते हैं ना, तो एक अलग ही इसेंस सा बन जाता है लाइफ में। खुशी का एहसास हर पल होने लगता है कि अरे हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, खुद को अच्छा लग रहा है। पहले तो जैसे आप करते हो, आप सारी चीजें कितनी एनर्जी के साथ, कितने डिवोशन के साथ में करते हो, मैं देखती हूँ आपका काम। थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीटास्किंग और भी बहुत लोग हैं बढ़िया बढ़िया करते हैं, और आप तो एग्जाम्पल ही हो इस वक्त हमारे लिए। आपने नहीं, बच्चे को शुरुआत शुरुआत यही होती है शीतल, जो जो आप कर रहे हो ये स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका बढ़िया है ना, तो आपका जर्नी बढ़िया ही जाएगा। राइट राइट राइट। ये है कि मदरहुड जर्नी, आई एंजॉय माय मदरहुड जर्नी, दैट इज ट्रू। मतलब मुझे कभी ऐसे दुख नहीं या ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि ऐसा क्यों है। आई व्हाटएवर द सैक्रिफाइसेस आई डिड ना, आई एंजॉय माय जर्नी के आई एम एंजॉयिंग माय मदरहुड। तो यस, मे बी आगे जाके वही वही क्या। चीज इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, तो आप जैसे बता रहे हो ना, यही शुरुआत है मे बी, लेकिन अभी तो फिलहाल आई डोंट नो व्हाट इज फ्यूचर, मैं फ्यूचर पे फोकस भी नहीं कर रही हूँ, बट आई एम एंजॉयिंग व्हाटएवर आई एम डूइंग इन प्रेजेंट। और एक चीज मितेश के बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगी शीतल, क्योंकि ये मदरहुड का जर्नी है, मदरहुड की जर्नी है, तो बच्चे तो तो इन्वॉल्व होंगे। मिलना तो बनता ही या है। तो जब मितेश 2 साल का था, तो ऐसे बच्चे करते हैं ना कि उनको कोई चीज चाहिए ही चाहिए। फिर राइट एकदम से पीछे पड़ गया कि नहीं मम्मा मुझे ये चाहिए। ऐसे 2 ढाई साल का आई थिंक कुछ था, तो रास्ते में ऐसे बैठ गया कि मुझे वो चीज चाहिए। और आओ। मुझे उस टाइम ये सही नहीं लगा कि मैं उसको वो चीज दूं करके, क्योंकि कुछ कुल्फी वगैरह ऐसे कुछ आइसक्रीम मांग रहा था, बट वो सर्दी का मौसम है तो हम लोग देते नहीं है ऐसे समय। तो मैं उसको दिया तो नहीं, मैंने उसको उठा के घर पे लेके आई। और पता है शीतल, 1 घंटा 1 घंटा मैंने उसके साथ में ये बताने में लगाया कि ये सही नहीं है। अगर पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं तो आपको कोई चीज सुननी चाहिए। राइट और बाद में जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि क्या मैं कर रही हूँ, उसको तो अभी कुछ समझ भी नहीं है, उसको राइट प्रॉपर बोलना नहीं आ रहा है। तो मैंने जो भी कुछ कहा है, पता नहीं है समझा है कि नहीं समझा है। बट सीरियसली शीतल, हम लोगों को ऐसे लगता है बच्चे सीखते हैं, बच्चे बच्चे समझते हैं। समझते हैं। बस सुन रहा था वो कि क्या मॉम बोल रही है उसको, बस सुन रहा था, बट वो उनको सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि हाँ ये चीज है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज जाती है प्रॉपरली कि नहीं सही क्या है गलत क्या है। तो कुछ एक हद तक उसके रिजल्ट्स आज हमें दिखाई दे रहे हैं कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ। छोटी छोटी चीजें होती है, बट राइट पता चलता है कि नहीं नहीं सही सही था वो। हाँ तो हाँ कोई हाँ। भी पेरेंट अगर बच्चे को समझाना चाहते हैं तो आप उसको, बहुत छोटा है तो भी उसके साथ में बात कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आधा 1 घंटा बात करें, बट उनको समझाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो धीरे 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 बच्चों का एक सेटअप बन जाता है कि पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं तो एटलीस्ट सुने, राइट। बैक नहीं, आंसरिंग ना करके। मैंने ये आपने जो पॉइंट बोला ना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहीं पे पेरेंट्स थोड़ा मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो लोग राइट का डायरेक्ट एक्शन होता है चिल्ला के बात करना, बोलना, नहीं ये नहीं वो नहीं। बट जबकि जो आप बोल रहे हो ना कि बच्चे सुनते हैं और समझते हैं, भले वो कोई भी एज के हो, एटलीस्ट वो सुनने की एक आदत डेवलप करते हैं। तो दिस इज अमेजिंग, यू नो, दिस इज राइट, बिकॉज मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। तो ये इट वर्क्स मैजिकल।
तो और ये ये ब्लैंक होते हैं शीतल, बच्चे ना ब्लैंक होते हैं, तो जो आप जो चाहे उस पे लिख सकते हो, डाल सकते हो उनके दिमाग में जो सही चीज है वो डाल सकते हो, बट ऐसे नहीं है कि आप बॉसिंग करके डालो। अगर आप राइट उस तरह से डालोगे तो सामने से भी, जब आज वो छोटा है आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, बट जब वो राइट बोल सकता है तो वो उसका एक अलग रवैया हो जाएगा आपके साथ में। राइट राइट तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरह से बच्चे से इंटरेक्ट करें। राइट। नहीं नहीं, राइट बोल रहे हो आप, क्योंकि छोटे हैं से सुन रहे हैं, बड़े होके वो वही चीज को नेगेटिव लेंगे। निगेटिवली लेते हैं, फिर हमारी हर एक गलती को गिनाते हैं कि अरे हाँ ऐसा ऐसा। हम बचपन में उनकी गलतियां गिनाते हैं तो उनको आदत हो जाती है कि अच्छा, गलतियां गिनाना एक प्रोसेस है जो करना चाहिए, तो वही आगे रिवर्स बैक होती है, फिर बाउंस बैक कर्मा। हमारी तरफ। राइट। तो मनन, मुझे ये पूछना था कि जब मितेश छोटा था स्कूल जाने के एज का, तो हाँ, उसकी स्टडीज का कैसे करते थे आप, और वो स्कूल जाने में इंटरेस्टेड होता था या कैसे, क्या था, मतलब हाउ हाउ ही वाज एज अ किड? मैं बताऊं शीतल, स्कूल जाना, बहुत सारे बच्चे अभी भी रोते हैं स्कूल में जाने से पहले, लेकिन मितेश का मैं बोल रही हूँ, मितेश को पहले 2 साल उसके जो थे वो, और थर्ड स्टैंडर्ड तक, मैं बोलती हूँ थर्ड स्टैंडर्ड तक, मीन्स वो कितने साल का था, 6 7 7 8 साल का था, तब तक मितेश को वो 2 2 3 3 लोग पकड़ के लेके जाते थे स्कूल में। जाना ही नहीं था उसको स्कूल में, बस 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 मॉम के साथ में घर पे रहना, बस उतना। बट मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं इसको क्या, हम लोग ऐसे बच्चों में ऐसे, मुझे हमें लगता है कि अरे पता नहीं क्या है, क्यों नहीं जाता, इसको पढ़ाई नहीं करनी है, आगे चल के कैसा होगा, हम लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो मुझे यहाँ पे एक चीज मेंशन करनी है शीतल, तब तो मैंने उसको एक दिन घर में लेके आई और मैंने उसको 2 4 लगवाए अच्छे से चांटे, तब के हिसाब से तो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक एक 1 2 साल की बात अलग होती है शीतल, लेकिन 7 8 साल 5 6 साल आपका बच्चा नहीं मान रहा है ये चीज, तो कैसे आप करोगे? तो राइट कहीं कहीं हम लोग की हिम्मत भी टूट जाती है कि क्या करें अभी। तो तब मैंने थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप लिया था, उसको ये करने के बाद उसको मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाया, उसको 2 4 चांटे भी लगवाए। फिर बाद में जैसे मितेश थोड़ा बड़ा हुआ शीतल, तो एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया उसको कि क्या तू क्यों नहीं स्कूल जाता था, क्यों परेशानी क्यों थी? तो मुझे बोलता था कि मॉम मुझे ऐसे डर लगता था कि वो जो बाहर गेट पे जो वॉचमैन वगैरह होते हैं वो आपको पकड़ लेंगे, मीन्स वो ये चीज हमारे दिमाग में कभी छुएगी भी नहीं कि बच्चे ऐसे सोच सकते हैं। हाँ एब्सोल्युटली, मतलब ये सोच भी नहीं सकते हम कि ऐसा भी नहीं सोच सकते। नहीं होता है जीवन। मैं इतना शॉक्ड हो गई कि पता नहीं यार कैसे, मीन्स ये चीज कैसे दिमाग में आ सकती है किसी के, लेकिन बच्चों के दिमाग में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ कुछ भी आ कुछ भी आ सकता है। बच्चे, आप किसी की आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा आप एफर्ट्स डाल रहे हो फिर भी वो चीजें नहीं सही हो रही है, तो मुझे लगता है कि काउंसलर की जरूरत होती है, क्योंकि पहले जरूरत नहीं होती थी क्योंकि फैमिलीज बड़ी होती थी, जैसे मैंने पेरेंटिंग सेशन में बताया था। बट आज कॉम्पैक्ट है सारा कुछ, तो बच्चों को खुलने के लिए जरूरत होती है। हाँ, पेरेंट्स के हाँ, अलावा कोई और चाहिए जिससे वो खुल के वही, बात करे। हाँ, कि ये क्योंकि ये हमारे साथ भी बहुत बार शेयर करने में डरते हैं कि पता नहीं ये क्या बोलेंगे या फिर, तो कोई ऐसा चाहिए जो मदद करे इन बच्चों की। तो मुझे लगता है कि एक अलग दुनिया होती है बच्चों की, अपने हिसाब से उनको चीजों को समझना आता है, धीरे धीरे सीखते हैं, समझते हैं चीजों को। बट हाँ, राइट उस वो इंसिडेंट के बाद में तो मैं समझ गई कि बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, और भी सोच। एक अलग मिल जाता है हमें कि अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग किसी को, इसीलिए ये सारे मेरे पेरेंटिंग के सेशंस में हम लोग इंक्लूड करते हैं ये सारे एग्जांपल्स शीतल, जो हमारी खुद की लाइफ से है। राइट क्योंकि जब हम किताबों से पढ़ते हैं तो उतना अग्रेसिवली एक्सप्लेन नहीं कर पाते जितनी चीजें हम लोग खुद एक्सप्लेन करके बताते हैं लोग। राइट तो राइट आज आज जो भी पेरेंट्स ये फेस करे तो उन्हें थोड़ा बच्चों को स्टडी करे, अगर जरूरत पड़े तो किसी काउंसलर के पास जाके उनका कोई है प्रॉब्लम तो उसको दूर करने की कोशिश करें।
ये राइट। एक अच्छा पॉइंट, हाँ ये एक अच्छा पॉइंट था मितेश की लाइफ। इससे ये समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही बच्चा सोच रहा हो। आउट ऑफ द बॉक्स भी बच्चा कुछ भी सोच के वो अपने सोच अंदर सकते हैं। ले सकता है। हमें ये उससे निकलवाना है या हमें उससे डिस्कस करना है कि ये क्या सोच रहा होगा और किस लेवल पे जा रहा होगा। यू नो वी कैन टॉक टू देम, राइट। एंड मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली वी नीड समवन एल्स टू जैसे काउंसलिंग या कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है आजकल बच्चों को, ताकि वो उनके अंदर की डेप्थ जान सके। राइट एब्सोल्युटली, दैट इज अमेजिंग। ये बहुत ही यूजफुल पॉइंट है एक्चुअली, बिकॉज आउट ऑफ द ब्लू बच्चे कुछ भी सोच के बैठे हैं और हमें आइडिया भी नहीं है कि ऐसा सोच रहे आइडिया हैं। नहीं होता है। हाँ, हम लोग या सिर्फ बाहरी इलाज करते हैं शीतल, बाहर से उनको हम हैमरिंग करते रहते हैं कि ये करना है ये करना है ये करना है, बट हो क्यों नहीं रहा है उसके पीछे हम लोग जाने की कोशिश नहीं करते। हाँ, रूट कॉज को नहीं समझ पाते हैं। राइट राइट, नहीं नहीं, एब्सोल्युटली राइट। तो मनन, तो मुझे एक और चीज जाननी थी कि आपने ही नितेश को पूरा पढ़ा 10th स्टैंडर्ड तक, 9th स्टैंडर्ड तक? यस 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 शीतल, 10th तक तो मैंने पढ़ाया। और बाद में क्या हुआ शीतल, उसको कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा पसंद थे। कंप्यूटर्स उसे, हमें क्या लगा फिर उसको कंप्यूटर्स पसंद है। और 10th हाँ, हमने पूछा कि हमने पहले से ये रखा था कि इसको जो पसंद है वही करेंगे। तो उसको हमने पूछा कि क्या करना है, तो वो ठीक है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हमने एडमिशन ले लिया उसको। बट हुआ क्या शीतल, जैसे जैसे उसका कॉलेज स्टार्ट हुआ उसको पता चला कि नहीं वो चीज थोड़ी उससे नहीं हो रही है। तो दो साल उसके वहां पे वेस्ट हो गए। हम लोगों ने भी उसको थोड़ा प्रेशराइज किया, थोड़ा समझाया कि नहीं अरे करना है आपको, फिर आप क्या करोगे आगे चल के। ये हुआ। जो 2 साल थे वो 2 साल में हमें एकदम तोड़ के रख दिया था शीतल, क्योंकि अगर हमारा एक ही बेटा है और हम लोग उसको नहीं, फ्यूचर का हमें टेंशन स्टार्ट हो जाता है ना कि क्या करे कैसे होगा। फ्यूचर हाँ का, तो हाँ। ये फियर फियर हो जाता है शीतल। तो वो 2 साल हमारे थोड़े से ऐसे गए कि पता नहीं क्या होगा, कंफ्यूजन में। फिर उसने बोला इंजीनियरिंग उसने क्विट कर दिया, तो बोला कि अभी मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा। तो हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि पता नहीं उसमें क्या होगा, क्या कैसे करेगा ये। तो बाद में उसने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया। और जैसे ही होटल मैनेजमेंट में उसने एडमिशन लिया शीतल, उसका करियर उसने इतनी अच्छी तरह ग्रो किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आया। Wow, wow, that's amazing. Superb. That's amazing. तो कभी कभी क्या होता है शीतल, बच्चों को हमें तो पता ही चलता नहीं है, हमें तो पता नहीं होता है कि क्या उसके लिए सही है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बच्चों का पेरेंट्स कभी गलत नहीं सोचते। बट Right. हम भी इंसान है ना, गलतियां हमसे भी होती है। बट वो एडमिट करना जरूरी है, हम लोग मान लेना चाहिए कि हाँ ठीक है कोई चीजें गलत हो रही है, ठीक है ये चीजें राइट, उस पर ईगो को लेकर वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं नहीं होना कर। चाहिए। हाँ, बिकॉज और पेरेंट्स ईगो। उनपे ये विश्वास करना चाहिए शीतल कि ये जो कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। क्योंकि हम जितना उनको पुश करेंगे वो आगे चल के उतना ही अच्छा एक लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको जो पीछे का सपोर्ट है वो स्ट्रांग होता है। तो बाद में उसने होटल मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट किया। फिर मीन्स उसका ओवरऑल पूरा ग्रोथ हो गया। एक्चुअली नितेश का पूरा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है। बाद में उसने चल के जो कुछ ग्रो किया है शीतल, इवन आफ्टर 12th वो न्यूजीलैंड गया, वहां पे उसने इतना प्रोग्रेस किया है कि वहां के उसको वैसे रिमार्क्स आते हैं कि ग्रामेटिकली प्रॉपर जो उसके पेपर्स वगैरह एग्जाम के इसमें आते हैं। तो और बोलने का स्पीकिंग का तो सवाल ही नहीं है शीतल, अब तो पूरा एक्सेंट ही उसका वहां का हो गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सोचते हैं कि पता बहुत नहीं क्या होगा, पता नहीं ऐसे वैसे, इसमें सारा चला जाता है। सोचेगा तो वो क्या करेगा, क्या क्या होगा, करेंगे। है वो है फलाना ढिमका, बहुत कुछ। राइट। बस आप बच्चे के सामने साथ में बने रहो, उसके पीछे एक प्रॉपर सपोर्ट जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे खड़े रहो। फिर राइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कभी कभी बच्चों को टाइम लगता है, बट चीजें सॉर्ट हो जाती है और बढ़िया होती वाओ यार, मैंने दिस इज रियली इंस्पायरिंग।
दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा ये एक बात फिर से कहना चाहूंगी। मनन चाइल्ड मितेश है उनका नाम। तो उन्होंने वर्नाकुलम मतलब मराठी मीडियम से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। एंड टुडे ही इज वर्किंग इन अ न्यूजीलैंड होटल, अ वेरी बिग 5 स्टार होटल। आई थिंक इट्स अ 7 स्टार होटल, राइट? 5 स्टार Yeah. होटल। He's a manager in that hotel and he is managing entire thing, and he is in a very good level and very good position। और सबसे important बात दोस्तों, इतने अच्छे values और संस्कार उस बच्चे में बंदे में है कि he is so grounded and he thinks so good। and वो जो उसके values है ना वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि that tops everything, and that all effort goes to you, Manan, you and your husband basically। but mother को ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए, इसलिए more to you। थोड़े स्वार्थी होना चाहिए ना, थोड़ा स्वार्थ निकलना चाहिए। नहीं नहीं, बट ये बहुत अच्छी बात है ना मनन। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था कि 10 तक किसने पढ़ाया उसको। व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन का जो बेस रूट है ना, बिकॉज आपने उसके उसके साथ 10 तक 9-10 तक आपने उसकी पढ़ाई ली, तो आप लोग का जो बॉन्ड है ना, बिकॉज आई नो स्टडी से जो बॉन्ड बनता है ना मदर और चाइल्ड का, वो एक बहुत सॉलिड बॉन्ड बनता है। राइट, बिकॉज वो लोग स्टडी में कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, वो सब हमें पता चलती है। एंड देन एज अ मदर वी वर्क ऑन इट। सो देयर ये मिस हो रहा है आजकल, बिकॉज हम ट्यूशन चूज कर रहे हैं, हम ये चूज कर रहे हैं, वो ऑप्शन चूज कर रहे हैं उसकी वजह से, बिकॉज पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, बिकॉज दे आर वर्किंग एंड आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आपके पास अगर आप वर्किंग भी है और पूरे दिन में आधा घंटा भी आप अपने बच्चे के साथ बैठे पढ़ाई के लिए ना, आई एम टेलिंग यू, जो बॉन्ड क्रिएट होगा ना, दैट विल बी अमेजिंग। और आपने जो टाइम दिया है उसको, इतना पढ़ाया उसको, दिस बिकॉज ऑफ दैट ही ग्रोड, सो उसकी इसमें ग्रोथ। इसमें एक एग्जांपल मैं शीतल ऐड करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को शायद वो चीज कनेक्ट कर जाए। मितेश इसमें बहुत वीक था, मैथ्स में वीक था। तो क्या होता था, कभी कभी समझाने में अगर मैं किसी बात पे उसको चिल्ला दूं, तो वो जो आता है उसको वो भी भूल जाएगा, वो भी भूल जाएगा। तो ये मैंने नोटिस किया कि ये चीज हो रही है। तो धीरे धीरे फिर उसमें भी थोड़ा चेंज करके कि नहीं, अभी अभी थोड़ा शांति से बैठना है, पेशेंस एकदम लेके बैठना है कि किस तरह अपने अवेयरनेस, कॉन्शियस। और ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है शीतल ना, ये अमेजिंग होती है। राइट। ये कोई बाहर जहाँ पे आप उनको ट्यूशंस में ले रहे हो, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है ना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि आगे चल के बच्चों को हमें बच्चे भी हमें देखते हैं, हम भी बच्चों को आगे पूरा लाइफ टाइम देखने वाले हैं। तो वो सारी चीजें ना, ये छोटी छोटी चीजों से बनती है। वो बॉन्ड जो है, जो आप बोल रहे हो, वो छोटी छोटी चीजों से बनता है। जितना आप अभी उनको, राइट, अभी जितना आप अभी उनको टाइम दे रहे हो, बाद में वो उतना टाइम आपको देने वाले हैं। यस। और आज का जो मेरे बेटे का जर्नी है शीतल, वो सिर्फ और सिर्फ उसने जो डिसाइड किया है, उसने जो डिसीजन किए लाइफ में, उस पे डिपेंड है सारा कुछ। होती है चीजें हम लोगों का जो, क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारा साथ ऐसे थोड़ा ग्रो करना है बच्चों को, बट आगे उड़ना उनको खुद को ही है। राइट। हमें बस उनके पंखों में थोड़ा ये डाल देना है कि आपको सपोर्ट है प्रॉपर चीजों का। राइट। तो बच्चे इतना ग्रो करते हैं। और मेरे बेटे का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूँ बार बार शीतल, क्योंकि मैं खुद फील कर रही हूँ। अभी उसका थोड़ा वेट भी ओवर वेट था, थोड़ा 7-8 kg का। उसने 20 दिन में 8 kg कम किया है वेट। वाओ, व्हाट? और पता नहीं, मैं पहले उसको बोलती थी अरे नहीं नहीं थोड़ा ये करो, खुद का केयर करो। तो बोलता था नहीं मामा, यहाँ पे मॉम यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, ये वो। बट जैसे ही उसने क्लिक कर लिया, उसको फाइनल कर लिया, उसने करना है तो बस करना है। राइट। ये जो डेडिकेशन है, मैं तो उसको बोलती हूँ कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ तुझसे। क्योंकि ये जरूरी है शीतल, क्योंकि हम पेरेंट है तो मीन्स हम भगवान नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती है। राइट हम राइट राइट। हम भी पेरेंट है, हम भी इंसान है, तो हम भी गलतियां करते हैं, बस राइट। उनसे सीखते भी है।
और सामने वाले को जब चाहे, क्योंकि वो अभी एडल्ट है, तो हमें भी उसका थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे बच्चा हो बेटा हो हमारा, बस उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए थोड़ा, कि उनको वो फील हो कि हाँ हम भी कुछ है। राइट। नहीं, ये बहुत अच्छा है। इट्स लाइक एन इंस्पायरिंग मदर का इंस्पायरिंग सन। हाँ। रियली Thank रियली you. नाइस मनन, रियली। अच्छा, तो मनन, ये हो गया उसका स्कूल टाइम जो आपने बताया, फिर उसका कॉलेज जब उसने डिसाइड किया कि वो ये करना चाहता है और उसने उसमें बहुत अच्छा टॉप किया, तो ये न्यूजीलैंड जाने का जो जर्नी था, तो आपको एज अ मदर ऐसा नहीं लगा कि मेरा बच्चा दूर चला जाएगा मुझसे? तो आपको वो फील नहीं हुआ कि कैसे मैं हाँ, उसको इतना भेजूं? मतलब it is very difficult for a mother to decide something like this. तभी बहुत सारा प्रेशर था शीतल, क्योंकि एक तो करना है, हमने उसको बोला था कि अगर तू डिस्ट्रिक्ट, तू फर्स्ट आता है, हमने बोला था सिर्फ कि तू अगर कॉलेज में फर्स्ट आएगा तो हम लोग सोचेंगे। अब अगर उसने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आने की ये कर लिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे। और फिर हाँ, ये एक था कि बच्चे के सामने झूठा नहीं होना है, तो बच्चे राइट को भेजना है तो भेजना है। तो राइट। फिर उसने, और कौन सी कंट्री उसने चूज की, हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोल रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स है। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये वहां पे जाए तो थोड़ा एक सेफर साइड होती है ना। हाँ, बट अगेन मितेश ने न्यूजीलैंड चूज किया। हम लोगों ने भी सोचा कि चलो कोई कुछ उसका कुछ इक्वेशंस होंगे, कुछ कैलकुलेशंस रहेगा आगे चल के। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ ठीक है। फिर जो रिलेटिव्स है उनकी तरफ से आया कि एक ही बच्चा है आपका, आप इतना दूर भेज रहे हो उसको, कैसे होगा, क्या आपको कुछ टेंशन नहीं है क्या उस चीज का? टेंशन तो बहुत होता है शीतल। अगर हम किसी रिलेटिव के पास में भी बच्चे को छोड़ते हैं तो भी कितना टेंशन आता है। बहुत और बहुत। मितेश, मेरा बेटा तो तब तक 20-21 का ही था, 21 का था वो जब वो गया। तो पता नहीं, लेकिन अगेन वही चीज आ जाती है कि आप अपने बच्चे पे विश्वास करते हो, तो राइट। वो उसको साबित करने के लिए, सही साबित करने में जुट जाता है उसी चीज, क्योंकि वहां पे उसका स्ट्रगल बहुत था शीतल। क्योंकि एक तो कंट्री नहीं, कोई पहचान वाला नहीं, स्ट्रगल वहां पे बहुत था उसका, क्योंकि नहीं हो पाती है चीजें अगर फैमिली साथ में, उसके साथ में कुछ 5-6 दोस्त भी थे उसके, जो आसपास के जो रूममेट्स वगैरह, उनमें से 3-4 तो वापिस आ गए। ओके। बट पता नहीं ये सरवाइव कर गया वहां पे, जो उसका अपना कुछ डिटर्मिनेशन था इस चीज को लेके कि नहीं मुझे करना है कुछ अलग सा। तो अभी 6 साल हुए उसको वहां पे, और 6 साल में एक बार भी वो आया नहीं है यहाँ पे। बट ओके। ऐसे नहीं है कि अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे ही बहुत उसको टाइम मिलता है हम लोग बैठ के बातें करते हैं। अभी टेक्नोलॉजी है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उसी तरह से राइट। बात होती है। बात तो करते। कहीं पे, हाँ कहीं पे ऐसा नहीं लगता है शीतल की इतना दूर है, फिर क्या कैसे होगा सारा कुछ। बट एक बिलीफ के साथ में अगर चलते हैं ना तो सारी चीजें आसान हो जाती, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि लाइफ आप अच्छा फील करके जियो ना, तो दुख के पल भी खुशी में बदल जाते हैं, राइट स्टार्ट हो राइट। जाते एब्सोल्युटली मनन, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आप वो शेयर करना चाहोगी क्या? आप मितेश और आपके हस्बैंड, आप लोग साथ में चाय पीते हैं, फोन कॉल हैं। शायद अरे कॉल हाँ, शायद, तो अरे आप जब हमारा पहले भी ऐसा था, जब संडे वगैरह होता था तो हम लोग तीनों बैठ के फिर जो भी हमारी प्लानिंग है, या फिर प्रॉपर्टी लेना है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, तो हम लोग चाय पे बैठ के, क्योंकि वो हमारा एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का तरीका है, एक अच्छा अमेजिंग। क्वालिटी टाइम बोलते हैं, या क्वालिटी टाइम। तो मतलब पहले इतनी क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हो, मतलब दैट्स अमेजिंग यार, दिस इज ऑसम, दिस इज रियली ऑसम। लोगों के पास अरे साथ सिर्फ में अभी अभी राइट राइट राइट। और हम लोग राह देखते हैं कि कभी ऐसा हो कि हम लोग बात करें, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी हो गया है वो, कोविड की वजह से मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहा है वहां पे। वाह। तो उसमें थोड़ा टाइम ये हो जाता है। बट जैसे ही उसको टाइम मिलता है वो कोशिश करता है कि हम लोग साथ में बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ से वो, ऐसे जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो वो है बाजू में, हम लोग चल रहे, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा टाइम ही होता है, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा एकदम ये भी हो जाते हैं
डिफरेंसेस भी होते हैं ओपिनियंस में, बट उसके साथ भी रिस्पेक्ट है एक दूसरे की। सिर्फ उसको हमारी रिस्पेक्ट है ऐसे नहीं है, हमें भी उसकी रिस्पेक्ट है। राइट, तो चीजें बढ़िया चल रही है। बढ़िया है। इट्स लाइक अ फ्रेंड, जिस तरह से आप जो बता रहे थे उस दिन, तो मैं वही हाँ बोल हाँ, रही थी, लाइक अ फ्रेंड, यू नो, मदर सन से ज्यादा आप लोग फ्रेंड लग रहे थे, तो दैट वाज अमेजिंग, बहुत ही अच्छी बात है। वही तो आप है। ये है, आपको पानी पीना है? नहीं नहीं, है यहाँ पे। ओके। नहीं तो मतलब ये बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, और इसी से मुझे ये ज्यादा फील हुआ कि आप लोग की बॉन्ड इतनी अमेजिंग है, मतलब यू गाइस आर सो इमोशनली connected with each other, you know, having such a great time together. It's awesome, it's very awesome, right? बहुत अच्छा है। तो मतलब मुझे, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपका एक लौता सन है, राइट? तो जब आपने जब मितेश हुआ, उसके बाद आपको ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, फैमिली प्रेशर या ऐसा कुछ कि आप और होना चाहिए, या फ्रेंड प्रेशर या कुछ भी, कि और एक बच्चा होना ही चाहिए, या मतलब हाउ इट वाज, यू नो, इट वाज इजी और कैसे था? राइट शीतल, क्योंकि हुआ था, अरे ये सभी के साथ में होता है शीतल। राइट, क्योंकि अगर एक बच्चा है 2-3 साल का हुआ तो सारे पूछने लगते हैं कि अब सेकेंड नंबर कब लगेगा। ऐसे मजाक में पूछते हैं, बट कोई कोई अगर नजदीकी रिश्तेदार है तो वो सीरियसली भी हो जाए, अरे नहीं कर लो फिर बाद में पता नहीं डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, इस डिफरेंस। तो कंफ्यूज होते हैं वो, ट्रेनिंग्स में भी हमारे हमें वो पूछने आते हैं कि मैम ऐसा ऐसा है फिर क्या, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ जाता है रिश्ते में हस्बैंड वाइफ के, कि क्या हस्बैंड हाँ बोल रहा है, वाइफ ना बोल रही, वाइफ ना बोल रही, हस्बैंड हाँ बोल रहा है। तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन आ जाता है। मुझे लगता है शीतल, हमारे साथ में भी ये चीज हुई थी, बट हम लोगों ने ये सोचा था, क्योंकि इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी है और प्लस पॉइंट्स भी है शीतल। माइनस पॉइंट हम लोग इसका ये लेते हैं ना, अगर एक ही बच्चा है आपका तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा उसको। ऐसे नहीं है कि 2 बच्चे हैं तो टाइम नहीं देना है, बट हम लोग कहीं बाहर गए तो बच्चे के साथ में 2 बच्चे हमारे, तो वो एक दूसरे के साथ में टाइम अच्छे से स्पेंड करते थे, सीखते हैं एक दूसरे से। राइट, बट राइट, अकेले है तो वो एक हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे बता बोलते थे कि पता नहीं अगर कुछ होता है लाइफ में आगे चल के, कुछ गलत चीज होती है बच्चों के साथ में तो क्या होगा, तो फिर तो दूसरा एक और बच्चा चाहिए। बट मेरा ओपिनियन पर्सनल ऐसा है शीतल के, अगर है डेस्टिनी, हम लोग सुनते हैं ना कि 2 भाई थे या 2 बहनें थी कि उनके साथ में दोनों के साथ में कुछ गलत हुआ, या फिर हाँ, होता है। ऐसा नहीं है हमारा एक ही बेटा है तो एक ही बेटी है तो नहीं होगी चीजें गलत, होना है राइट, तो होना है। बट जो होना है। अगेन ये, राइट, तो अगेन शीतल ये इस पे डिपेंड करता है कि आप हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन कैसा है। अगर इन केस माइनस परसेंट भी एक पकड़ के चलते हैं कि कुछ गलत होता है, और हस्बैंड वाइफ को बोलेगा, ब्लेम करेगा, और क्या वाइफ हस्बैंड को ब्लेम करेगी कि आपने ऐसा डिसीजन किया, तो मुझे लगता है कि प्रॉपरली बैठ के ये अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है। बट हाँ, अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा है, आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, तो आप एक बच्चा हो 2 बच्चे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, और एक बच्चा हो तो हम लोग उसको अच्छे से उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इमोशनली हम उसके साथ में जुड़े, ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे नहीं है 2 बच्चों के साथ में नहीं होते, लेकिन और मेरी ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके 2 बच्चे हैं शीतल, हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे खत्म होती है तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कि हाँ साइड साइड, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 32 के एज तक मैं फ्री हो गई। बट राइट, अगर 2 बच्चे हैं तो और 4-5 साल चले जाते हैं उसमें, राइट, और 4-5 साल बाद हमारी जिम्मेदारी ये होती है और हम लोग आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो ये अगेन ये हमारा ओपिनियन है। तो ये इसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स है कि हम लोग उस पर थोड़ा सोच के फिर आगे का थोड़ा सोच के हम अपनी लाइफ जी सकते हैं। राइट। नहीं, बराबर है। और फिर मतलब ऐसा भी कुछ था कि मतलब लड़का है तो लड़की चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ advice कुछ? हाँ, वो भी होता है शीतल की, अगर लड़की आती है पहले तो ऐसे होता है कि नहीं फिर एक बेटा चाहिए। बट मुझे अभी भी ऐसे लगता है ना कि हमारा तो वैसा है ही नहीं, था नहीं, तभी कुछ भी हो राइट, एक ही चाहिए था। बट
अभी तो कानूनी तौर पे भी लड़का और लड़की सेम ही लेवल पे है। लड़की भी सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसकी सेम रहती है, उसके हक भी सेम है। तो मुझे लगता है कि कोई इश्यू नहीं है आज। और आज हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं अभी आजकल शीतल के, एक लड़की है फिर भी उन्होंने अभी डिसीजन ले लिया है कि बस अभी और बच्चा नहीं लाना है। राइट राइट। नहीं नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है। तो अच्छा, मतलब मुझे जानना है मतलब कि ऐसी कौन सी दो तीन चीजें जो आपको लगती है खास करके कि आपका और नितेश की बॉन्डिंग के लिए वो बहुत हेल्प किया है उन चीजों ने। एक तो पहली चीज तो शीतल ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। राइट। मीन्स हम बच्चों को सिखाते अलग है बट हम करते अलग है, जैसे मैंने पहले बोला। एकदम तो सही बात बच्चों बोली। को ये बच्चों को कभी नहीं लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो हमें बताते हैं वो खुद नहीं है। नहीं करते क्योंकि हैं, हाँ। जैसे मैंने बोला ये छोटे थे, तो छोटा था तो तब हम लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं इनको समझ में नहीं आती है कुछ चीजें। खास करके हम बड़ों का जो रिस्पेक्ट करते हैं शीतल, हमें चाहिए रिस्पेक्ट, तो हमको ये उनके सामने, उनके पीठ पीछे उनके सामने सेम पर्सन रहना है। ऐसे नहीं है कि हम लोग अलग अलग पर्सनालिटीज को लेके चले। राइट राइट मुझे राइट सबसे बड़ी चीज ये लगती है, क्योंकि जब रिस्पेक्ट हमें मिलने की बारी आती है शीतल, तो वो पैरामीटर्स बच्चे लगाते हैं कि राइट। ये इनके पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते थे, ये इनके इन-लॉज के बारे में क्या सोचते हैं सोचते कैसे थे तब, कर रहे हैं, एक्शंस उनके एक्शंस क्या है हमारे एक्शंस पेरेंट्स। क्या थे। राइट राइट राइट। सिर्फ हम बताते हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए फिर हमें रिस्पेक्ट मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। आप जो आपने जो किया है, बोया है ना, वही आपको काटने को मिलेगा, सेम ही है। तो राइट ये एक चीज मुझे लगता है कि ऐसा लाइफ ऐसे जीना चाहिए, क्योंकि अगर गलती भी हुई है, इंसान है, गलतियां होती है, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। बच्चों राइट के सामने भी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, ओके। और बच्चों को ये धीरे धीरे समझ में आती है चीजें, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। ये एक आईने जैसा अगर बच्चों को हम बना लेते हैं ना शीतल, तो मुझे लगता है राइट कि ये प्लस पॉइंट बहुत बढ़िया है। और राइट सेकंड मुझे लगता है कि विश्वास करो उन पे। और राइट कहीं कहीं हमें ऐसा लगा था शीतल के मेरे बेटे का शायद ये डिसीजन गलत जा रहा है। हमें लगा, हमने उसको टोका भी कि नहीं ये गलत होता है। हाँ बट अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं शीतल, तो वो एकदम राइट डिसीजन था। और वाओ। हम लोग ये उसको बोलते भी है, एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ योर डिसीजन इज राइट, जो भी राइट था आपका सही था। अभी आप जो डिसीजन ले रहे हो सही ले रहे हो, क्योंकि सही ले अभी उसको, हाँ, तो अभी उसको बहुत सारी चीजें करनी है, अभी भी बहुत सारी चीजों पे उसका थोड़ा कॉन्शियस होता है कि क्या ये, हम यही बोलते हैं कि जो भी आप कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि वो है। क्योंकि एज अ पेरेंट हम लोग सिर्फ, हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है ना ये कि हम सही गलत हम बताएं तभी बच्चे सीखे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं शीतल ना, कि बच्चों को अपने आप पे डिपेंडेंट बना देते हैं। हाँ, और डोमिनेटिंग है, वही सब कुछ हाँ, करना चाहते हैं सब कुछ। और उसमें उनको खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे हमसे बिना पूछे ये नहीं करते हैं, कुछ बाहर नहीं जाएंगे, या फिर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनको, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। रोक रहा आप है, उनको राइट खुला छोड़ दो, जैसा वो करेंगे। हाँ, एक एज तक आपको उनको संभालना है, ये स्ट्रिक्ट बात है कि आपको उनको संभालना है एक एज तक, अच्छा राइट बुरा समझाना रहना है। बट उसके बाद में जैसे ही वो, अभी की बात अगर करें शीतल, तो हम लोग यही सोचते हैं ना कि अब उसके हवाले है उसकी जिंदगी, उसने आगे चल के क्या करना है। और ये भी एक एक्सेप्टेंस के तौर पे ही है। अब हम लोग उसकी वाइफ के लिए वेलकम कैसे करना है उसका, क्योंकि अभी वो समय है हमारी लाइफ में कि अभी उस एक नया पर्सन आने वाला है, तो उसको हम कैसे पॉजिटिवली लें, उसकी चीजों को कैसे हम ये करें। तो उन पे विश्वास, और उनके लिए एक हम ऐसी पर्सनालिटी बने कि जो एक ही है, उनका चेहरा एक ही है। राइट। ये वननेस। दो चीजें, या हाँ वननेस और जो भी जब भी उनको जरूरत पड़े तो हम लोग है, है। चाहे जरूर। दूर है, हाँ या जरूर। चाहे दूर है, चाहे किसी भी रूप में, बट हम उसके साथ में है। कुछ भी गलत हो रहा है तो उससे क्या होता क्या है शीतल, कि वो अलग अलग जिंदगी में अलग अलग
एग्जाम्स के लिए रेडी रहते हैं कि अरे हाँ ठीक है, अगर कुछ होता है गलत तो है साथ में। बस ये बिलीफ दे उन्हें। जो घरों में होते हैं ना बहुत सारे पेड़ होते हैं, छोटा बना के रखते हैं, तो वो हाँ ना करे कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को, उनको खुला छोड़े कि ज्यादा वो उड़े, अपने आप में ग्रो करे। और right, वो सबसे बड़ी खुशी की बात होती है शीतल। अभी आगे चल के आप परम को देखोगे कि कितनी किस तरह से परम ग्रो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है पेरेंट्स के लिए, right, खास right. और करके जो माँ के लिए। हाँ खास बोलिए करके ना। माँ के लिए, हाँ एक अलग बॉन्ड होता है। हम लोग 9 महीने ज्यादा संभालते हैं, तो थोड़ा एक अलग होता है। राइट राइट, नहीं ये बहुत ही आपने ब्यूटीफुल चीज शेयर की दोस्तों। ये चीज हम सबको अपने माइंडसेट में स्टोर कर लेनी चाहिए कि जो मनन ने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताई कि हम किस तरह से अपने बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। एंड दिस इज ऑसम मनन, सीरियसली मैं बता रही हूँ कि आज का ये जो लाइव जो भी सुनेगा ना, आपकी जर्नी से तो इंस्पायर होगा ही, सबसे इम्पोर्टेंट उसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड सर मैं बता रही हूँ आपको, आज के लाइफ में मैंने बहुत कुछ सीखा फॉर अ मदरहुड। वो भी मुझे एड अप हो गया, मतलब आई कैन इम्प्रूव मोर नाउ एज अ मदर, आई कैन इम्प्रूव मोर। तो मन इट वाज रियली 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 अमेजिंग। और ऐसे कुछ है कि आपको शेयर करना है हम सबसे, मितेश के बारे में या आपके बारे में या आप दोनों के बारे में, या कुछ और, या एज ए पेरेंट्स के लिए कुछ? पेरेंट्स के लिए तो मैंने हम शेयर कर ही रहे हैं शीतल के क्या कैसे रहे। बट मुझे राइट ऐसे लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये सोचना है कि हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर पाए तो बुरा तो ना करें, किसी के राइट बारे में बुरा ना सोचे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इस जर्नी में जुड़ते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। बट हमें वो चीज पॉजिटिवली लेनी है हर बार। उनमें कोई कुछ गलत फीलिंग्स उनके लिए अपने दिल में नहीं रखनी है। उनके वो रख रहे हैं तो वो अलग बात है। बट अपने लिए, क्योंकि क्या होता है जैसे घरों में हम लोग सफाई करते हैं, दिवाली त्योहार आता है तो वैसे दिल की भी सफाई करें कि किसी के लिए राइट ना बुरा सोचे, ना बुरा कोई इंटेंशन रखे दिल में। अगर कोई राइट ग्रो हो रहा है आपके सामने आपसे भी ज्यादा, तो आप खुश हो उसके लिए कि अरे हाँ बढ़िया है। आप उनको मोटिवेट करो, आप उनको एक अच्छी वाइब्रेशंस दो ताकि वो आपको याद रखे आगे चल के राइट भी। राइट और आपको खुद में, क्योंकि हम लोग किसी की दूसरे की तारीफ करते शीतल, तो हम अपने आप में एक अलग ही बदलाव महसूस करते कि अरे कुछ हो रहा है अलग से। राइट और ये मैं हर पल महसूस करती हूँ शीतल। राइट तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ये चीज थोड़ी देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। क्योंकि हम लोग भी, मैं भी कुछ ये सीख के नहीं आई थी, बट कोशिश करी। अभी भी मैं सीख चुकी हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ सीखना है अभी। नहीं लेकिन फिर भी कुछ ऐसा करते हो मनन जो एक मतलब you do some things that really inspires, and even I'm learning so much from you. So आपकी जो रूटीन है वो भी इट्स अ वेरी गुड टू लर्न। तो मेरे ख्याल से ये जो आपकी रूटीन है और जिस तरह से आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन है, जिस तरह से आप आज भी सीखते हो, नया नया कुछ सीखते हो, तो ये सब चीजें सब पाइल्ड अप करके एक अमेजिंग जर्नी की तरफ चलती है। तो आई थिंक दिस इज द सीक्रेट एक्चुअली, having an amazing routine, having an amazing learning, ये सब एक, आई थिंक दिस इज द अमेजिंग ब्यूटीफुल जर्नी एक्चुअली। और मुझे एक चीज और ऐड करनी है शीतल, कि अगर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है लाइफ में, तो अगर कोई बड़ी चीज भी हो जाती है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल है, तो मुझे लगता है अपने आप को 1 दिन 2 दिन 8 दिन से ज्यादा मत दो कि आप उस चीज में इन्वॉल्व होते रहो। क्योंकि फिर आप अपने आप को स्पॉइल कर देते हो। आप अपने राइट आप को, जब 8 दिन ठीक है, बहुत ज्यादा अगर क्लोजली कोई चीज गलत हो रही है, तो 4 से 8 दिन आप अपने आप को दे दो। लेकिन उसके बाद में नहीं। आप उसके बाद में एक सोच लो कि मुझे नहीं करनी है ये चीज, जिससे बाहर आना है और अच्छा कुछ करना है। राइट और ये चीज हर कोई कर सकता है शीतल, हर कोई कर सकता है, ये कोई स्पेशल बात नहीं है।
और मैं Exactly. यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आप लेके आए जो कि जिन्होंने कुछ बहुत अमेजिंग लाइफ बनाई हुई है। मैं तो प्रे करूंगी कि बहुत ज्यादा लोगों से हम लोग मिले, एक Right. बड़ा सा ग्रुप बने हमारा, कि हम लोग एक एक अलग ही मोड पे चले जाए सारे। जैसे Amazing. नशा करने के बाद में चीजें होती है, वैसे एक खुशी का नशा सबको हो जाए, ऐसे ही मुझे मैं प्रे करूंगी सबके लिए। That's nice. That's amazing. दोस्तों मनन ने आज इतनी अमेजिंग चीजें शेयर की हमारे साथ और आई एम वेरी श्योर कि आप सबको उसमें से कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। और दोस्तों रियली मनन आई एम टेलिंग यू योर जर्नी वाज रियली अमेजिंग बिकॉज जो बड़ी बड़ी चीजें जो सिंपल तरीके से आपने कर ली वो बहुत ही अमेजिंग थी। और जैसे जैसे आपने बताया इट वाज रियली 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 wonderful to know your journey. It was amazing, seriously. And Manan, thank you so much for your such valuable time and such beautiful journey you are sharing with us. Thank you so much. We are so grateful for that. Thank you so much. थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे भी मैंने कुछ सीखी, एक अच्छा माहौल बनाया आपने। और जो भी हमें देख रहे हैं वो भी मैं प्रे करूंगी सभी के लिए कि वो भी कुछ अपनी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकलने में हम हमारी कुछ विशेष उनकी मदद करें। राइट राइट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। दोस्तों इसी वजह से जो अमेजिंग लाइफ है ना वो लोगों को और ये कर रहा है बिकॉज हमारी जो टीम है मनन, नेहा, ध्रुवी, बहुत सारे लोग हैं तो वो सब अपनी तरफ से पूरा हेल्प करने के लिए आगे आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट मिले। This is the reason Amazing Life is growing. Thank you so much. Actually, Manan, thank you so much to you, to all our experts. Thank you so much. We are so grateful. Manan, thank you for joining. It was really a wonderful session. बहुत मजा आ गया. End करने का मन ही नहीं कर रहा. मन कर रहा और सुनते जाए. और But we बातें have to, करें। yeah, और बात. But we have to end here. So Manan, I'm winding up. तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में। हम सेकंड कैंपेन लेके आ रहे हैं, उसकी डिटेल हम आपको नेक्स्ट लाइव में बताएंगे और स्टोरीज बताएंगे, तो कीप वॉचिंग। सो तब तक के लिए बाय एवरीवन।